Hello, everyone. Greetings of the day, everybody. I'm Priyanjali from Beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health today. We are diving into a topic that touches everyone under the sun, literally. We are here to talk about the importance and role of sunscreen in our daily skincare routine. Do you know that only about 30% of adults and even fewer children regularly use sunscreen when exposed to the sun? With skin problem rates on the rise, understanding the significance of sunscreen is more crucial than ever. Sunscreen isn't just about preventing sunburns, it is a powerful shield against harmful UV rays that can lead to premature aging, wrinkles, and hyperpigmentation. Most importantly, skin cancer. Yet, many of us still have questions about which sunscreen to choose, how often to apply it, and its long term benefits. Whether you are a skincare enthusiast or just starting to explore the world of sun protection, let's unlock the secrets of sunscreen together and embark on a journey towards safe, sun safe skin. That's why we are thrilled to have Dr. Jayesh Sanaria from Morbi with us today. Dr. Jayesh A. Sanaria stands as a renowned cosmetic dermatologist with a rich legacy of expertise spanning back to 2007. As the pioneering force and chief of Sparsh Skin and Cosmetic Clinic, his dedication has propelled the clinic to be a beacon of trust in dermatological and cosmetic treatments, not just in Morbi, but across Kutch and Saurashtra. Dr. Dr. Jayesh's academic prowess is matched only by his contributions to the medical community, even evident through his membership in esteemed organizations like IMA, IADVL, CDSI, CDSR, AAD, and ACSI. With a plethora of research papers, publications, and active roles in conferences, he continued to shape the field of dermatology, recognized for his outstanding contributions. Dr. Jayesh has been honored with awards such as the Best Academician Award by IMA Morbi Branch and the Best Socio-Medical Award Service Award by IMA State Gujarat Branch, solidifying his state as a leader in both academic and service realms. Welcome, Doctor. It is a privilege to host you today. डॉक्टर आज का हमारा सबसे पहला सवाल होने वाला है कि क्या सनस्क्रीन हर दिन लगाना है? थैंक यू मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस इंट्रोडक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। हम रेगुलरली देखेंगे तो सोलर स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट ए तीन हमारा रेज होता है। इसमें से अल्ट्रावायलेट सी 100% ओजोन लेयर से ओजोन लेयर उसको प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट बी में 90% वो प्रिवेंट करते हैं। बाकी अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी वो दोनों रेगुलरली हमारा सोलर स्पेक्ट्रम से हमारा एटमॉस्फेयर में आते हैं। अगर हम घर पे ही रहेंगे और ग्लास में भी फिल्म लगाई हुई है, फिर भी अल्ट्रावायलेट ए को वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो रेगुलरली हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एक्चुअली जो हमें स्किन में एजिंग प्रिवेंट करना है, हमारी स्किन ग्लैमरस चाहिए और ग्लोइंग स्किन चाहिए, क्योंकि हमारा सोलर स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है कि अल्ट्रावायलेट सी को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करते हैं और अल्ट्रावायलेट बी को 95 रेज प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम घर पे रहेंगे और फिल्म भी लगाएंगे या फिर कार में भी जाएंगे, वहां पे फिल्म लगाए, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए को प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। और दूसरा चीज ऐसा है कि आपने बोला कि सन स्क्रीन, तो मितला उसका मतलब ही ऐसा है। अगर हम घर पे रहेंगे, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं और घर पे कोई भी लाइट चल रही है, तो उसमें भी ब्लू लाइट आती है, वो रेगुलर हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, उसकी वजह से थोड़ा एजिंग भी होगा, स्किन में पिगमेंटेशन भी आएगा। तो हमें एजिंग प्रिवेंशन के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें रेनी सीजन है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, तो उसमें भी रेडिएशन का प्रॉब्लम होता है। तो समर, विंटर, मानसून अगर घर पे भी रहना चाहिए, तो मेरा मानना है कि सनस्क्रीन तो कंपलसरी लगाना चाहिए। राइट राइट डॉक्टर, ये तो चलिए हो गई कि हमें सनस्क्रीन लगाना है, ये तो हमें पता चल गया अभी, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे दिन हो, सुबह हो, रात हो, पर एप्लीकेशन का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए प्लीज। सभी लोग, पहली चीज तो ऐसा है कि हमारे इंडिया में देखेगा तो 60 to 70% लोग रेगुलर सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं चाहिए।
अगर हम जी रेगुलर सनस्क्रीन लगाएंगे तो मैंने बोला कि आपको एंटी एजिंग का रोल है, लेकिन उसके लगाने की जी टेक्निक ऐसा है कि इसमें सनस्क्रीन दो टाइप के आता है, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मीन्स के फिजिकल ब्लोकर और केमिकल ब्लोकर। तो फिजिकल ब्लोकर ऐसा आएगा, इसमें आयन ऑक्साइड आएगा, टिटेनियम डाइऑक्साइड आएगा, जिंक ऑक्साइड आएगा और कैलामाइन आएगा। तो वो सनस्क्रीन ऐसा राइट है, वो अगर हम लगाएंगे ना बॉडी में तो सन रेज को रिफ्लेक्शन करेगा। तो वो अगर लगाना है और लगाने के बाद अगर धूप में जाना है तो तुरंत आप जा सकते हैं। लेकिन जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें भी अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन और अल्ट्रावायलेट बी और दोनों को प्रोटेक्शन करने वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आता है। उसका रोल ऐसा है कि वो अगर लगाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्सॉर्ब करेंगे और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वो केमिकल सनस्क्रीन अगर हमें लगाना है तो मिनिमम 25 to 30 मिनट्स बिफोर गोइंग टू सन एक्सपोजर वी शुड अप्लाई। अगर हमें फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है तो वो लगाने के बाद 5 मिनट्स के बाद आप जा सकते हैं। दूसरी चीज, उसकी क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई सनस्क्रीन जी लगाता है, फेस पे लगाते हैं, लगाने के बाद तुरंत धूप में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, उसका हम्म। प्रॉपर डोज भी लगाना चाहिए, आइडियली 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको दूसरा मैं तरीका बताऊं तो उसके लिए स्पून में अगर काउंट करेंगे 1 टीस्पून फुल मीन्स 5 ml, तो पूरा फेस में लगाने के लिए 1 टीस्पून फुल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लगाने के लिए 1 टीस्पून फुल, चेस्ट और बैक के लिए 1 टीस्पून फुल और दोनों लेग के लिए 2 टीस्पून फुल। मीन्स फुल बॉडी में अगर कवर करना है, किसी को स्विमिंग में जाना है तो मिनिमम 90 ml सनस्क्रीन लगाना चाहिए, वो भी 30 मिनट्स बिफोर लगाना चाहिए। तो इसका प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा। और काफी लोग क्या लिप्स को छोड़ देते हैं और ईयर के पीछे जो पोस्ट ऑरिकुलर रीजन है वहां पे नहीं लगाते हैं, तो वहां पे भी टर्निंग हो जाता है। तो वो लगा के अच्छी तरह से उसको डैम्प करके 30 मिनट्स के बाद अगर जाएंगे तो उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। राइट राइट। डॉक्टर, ये तो हो गया सनस्क्रीन कितना यूज करना है, पर लगाना कैसे है। हमने बहुत लोगों को देखा है कि हाथों में सनस्क्रीन लगा के हाथ रब कर लेंगे और फेस में ऐसे घिस लेंगे। क्या ये सही सही तरीका है या नहीं है? अगर तो सही तरीका क्या है लगाने का? नहीं, आइडियली सनस्क्रीन हमें हाथ में नहीं लेना है, और सनस्क्रीन हम डायरेक्ट फेस में वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे पूरा लगा के हल्के से उसको डैम्प करना है। अगर राइट फिजिकल सनस्क्रीन है तो किसी किसी को व्हाइट कास्टिंग का प्रॉब्लम है, इसमें भी अभी थोड़ा माइक्रो पार्टिकल, नैनो साइज पार्टिकल आता है, तो उसको थोड़ा रब करने का है। तो दूसरी चीज वो मैं एक बताऊंगा कि अगर सनस्क्रीन लगाए उसके बाद फेस वॉश की भी जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे के बाद हमें रिपीट करना है। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप वापस भी उसको सेकंड सिटिंग लगा सकते हैं, उसको फेस वॉश करने की राइट जरूरत नहीं है। राइट। डॉक्टर, आपने कहा रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, तो क्या रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन जरूरी है? क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगा लिया हो गया, पर अगर जरूरी है तो कितनी देर बाद जरूरी है? कितना ड्यूरेशन तक सनस्क्रीन लास्ट करता है एक बार लगाने के बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है अपने विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू आर यूजिंग। उसका सनस्क्रीन मेजरमेंट के लिए उसका एसपीएफ आता है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। और सेकंड चीज ऐसा है क्या हमें कौन सा इंडिकेशन के लिए यूज करना है। अगर हमें वाटरप्रूफ सनस्क्रीन है, स्विमिंग में जाना है, किसी किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, और किसी किसी को रेगुलर घर में कॉर्पोरेट वर्कर है, तो उसके लिए सभी के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, मेरा जैसा कोई डॉक्टर है कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वो रेगुलर अगर 15 to 30 एसपी वाला सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो जी दिन में 2 या 3 बार चला लगाएंगे तो बेटर है। अगर किसी को आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाना है तो उसको जी मिनिमम फुल डे के लिए आउटडोर एक्टिविटी में जाना है तो उसको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स लगाना है। और किसी किसी को ऑलरेडी स्किन डिजीज है और फोटो एग्रेवेटिंग डर्मेटोसिस है, फोटो एलर्जी है, और किसी को रोजेसिया है, तो उसको तो रिपीटली 2 to 3 आवर में रिपीट करना चाहिए। ऑन एन एवरेज रेगुलर बताऊं तो हम टीवी का शो का टाइम है 9 बजे लगाया, 12 बजे लगाया और 3 बजे लगाया, तो मिनिमम 3 टाइम्स लगाना चाहिए। जी जी। डॉक्टर, आपने कहा कि एसपीएफ, क्या होता है ये एसपीएफ लेवल, और कैसे हम जांच कर सकते हैं एक सनस्क्रीन खरीदने से पहले कि हमारी स्किन के लिए ये सनस्क्रीन बेटर होगा? वो एसपीएफ का मतलब है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। अगर हमें कोई भी जी सनस्क्रीन परचेस करना है तो वो सनस्क्रीन में लिखा होगा 15 एसपीएफ, 13 एसपीएफ, 50 एसपीएफ। जी उसका मतलब है वो अल्ट्रावायलेट बी रेज का प्रोटेक्शन का मेजरमेंट का एक तरीका है। अगर मेरी स्किन में मैं सनस्क्रीन नहीं लगाया और धूप में गया तो 5 मिनट के बाद मेरे स्किन में रेडनेस आ जाएगी। और मैंने अगर सनस्क्रीन आपको 30 एसपीएफ वाला लगाया तो उसका मतलब है कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द सनस्क्रीन डिवाइडेड बाय
मिनिमम एरिथेमा डोज आफ्टर नॉन अप्लाइंग द सनस्क्रीन, तो वो अगर 30 एसपीएफ वाला मैंने सनस्क्रीन लगाया तो वो मेरी रेडनेस 30 मल्टीप्लाई बाय 5 मींस 150 मिनट के 2.5 आवर के बाद रेडनेस आएगी। तो सनस्क्रीन का कितना मेजरमेंट का यह तरीका है। तो हमारे इंडियन स्किन के लिए मैं बताऊंगा तो 15 एसपीएफ वाला अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो अल्ट्रावायलेट बी को 93% प्रोटेक्शन करेगा। अगर हम 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो 96 टू 97% प्रोटेक्शन करेंगे। और अगर 50 एसपीएफ वाला हमने सनस्क्रीन लगाया तो वो 98% अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्शन करेंगे। तो वो एसपीएफ का मतलब ये है कि हम उसकी पोटेंसी मेजरमेंट कर सकते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर, हम परसेंटेज के बारे में जब बात कर रहे हैं, हमें ये भी बताइए कि क्या सनस्क्रीन 100% हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे जो भी हार्मफुल यूवी रेज है उससे? मैंने आपको पहले भी बोला कि अल्ट्रावायलेट बी बहुत कम 5 to 10% ही हम अर्थ पे पहुंचते हैं। अल्ट्रावायलेट ए है वो क्या है कि वो 100% हमारा स्किन में वो पहुंचते हैं। तो अगर हमने प्रॉपर एप्लीकेशन किया और अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ स्किन हमने यूज किया, सपोज कि मेरी स्किन ड्राई है और हमने क्रीम बेस वाला सनस्क्रीन लगाया और 2 to 30 मिनट्स बिफोर हमने एप्लीकेशन किया, तो वो प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ में हमने दूसरा भी मेजरमेंट पूरा, हमने कपड़ा भी अच्छी तरह से फुल स्लीव के पहने, अम्ब्रेला यूज किया, तो उसका बेनिफिट एड ऑन की तरफ 100% ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए और सनस्क्रीन का डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ स्किन हम यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट प्रॉपर मिलेगा 100%। राइट, राइट। वेल, तो सबसे बड़ा स्टेप तो हमारे लिए ये हो गया कि सही प्रोडक्ट यूज करना है हमें हमारी स्किन के लिए। और यस, इसके लिए आप सभी को पता है कि हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद है टू हेल्प यू आउट, टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन। तो जब आप कंफ्यूज्ड हो, एक्सपर्ट के पास जाएं। और अगर नहीं भी हो तो भी हम कहेंगे कि एक्सपर्ट के पास जाए, क्योंकि स्किन एक ऐसा टाइप ऑफ जगह नहीं स्किन। है जिसपे आप ट्रायल एंड एरर अपनाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस, तो लेट देम डील विद इट। डॉक्टर, हम हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल ये है कि एसपीएफ लेवल के हमने बारे में हमने जाना है। अ, यस, एक और चीज लिखा होता है कोई भी सनस्क्रीन के पैकेजिंग में, विच इज बूथ स्टार रेटिंग या यस। पीए रेटिंग। क्या होता है वो? मैंने बोला वो एसपीएफ, दूसरा आपने बोला कि वो पीएफ+2+3 और +4। इसका मतलब है हम्म। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए। सनफी जी। एसपीएफ है वो अल्ट्रावायलेट बी का प्रोटेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन ये जो पीएफ+1+2 है वो टेक्निक जापानीज ने सर्च किया है। वो हमारा जी। अल्ट्रावायलेट ए का कितना प्रोटेक्शन है। अगर +1 है तो उसका मतलब 2 to 4, +2 है 4 to 8, +3 है तो 8 to 16 और +4 है तो मोर देन 16 मींस द जी। पिगमेंटेशन प्रोडक्शन रेट। तो अल्ट्रावायलेट ए का प्रोडक्शन का मेजरमेंट के लिए ये पीएफ+1 है। और जो बूस्टर है उसका रेटिंग में स्टार रेट है, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। वो बूस्ट कंपनी ने यूके ने सर्च किया है। वो अल्ट्रावायलेट ए डिवाइडेड बाय अल्ट्रावायलेट बी उसका मेजरमेंट करते हैं। तो हमें कोई भी सनस्क्रीन अगर परचेस करना है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि एसपीएफ 30 एसपीएफ, पीएफ+1, +2, +3 और बूस्टर। अगर हम +4 पीए+4 बूस्टर 3 एंड एसपीएफ 15 वाला यूज किया तो वह सबसे बेस्ट वाला सनस्क्रीन है। तो वो अल्ट्रावायलेट ए को प्रोटेक्शन करने का मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है। राइट, राइट। डॉक्टर, ऑल्सो हम जब छोटे थे हमें किसी ने नहीं कहा कि धूप में सनस्क्रीन लगा के जाओ। समय के ओके। साथ ये सनस्क्रीन का जो मतलब अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। इनफैक्ट यस। अभी आज के डेट में सभी बोल रहे हैं कि सनस्क्रीन लगाना तो बहुत जरूरी है। आप मॉइस्चराइजर लगाओ नहीं लगाओ, पर सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इतना कम समय में इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया समाज में? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सनस्क्रीन बेचने का। आजकल कंपनीज सिर्फ एज ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से अपना रहे हैं। तो आपके क्या विचार है इस बात पे? सही बात, क्योंकि हम छोटे थे तभी पता ही नहीं था कि सन धूप में जाना तो जी, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। लेकिन अभी जी, क्या जी, थोड़ा सोशल मीडिया का युग आ गया, सभी लोग को जी, फेसबुक में, इंस्टा में रील बनाना है और फेस में अच्छा दिखना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है जी। कि हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्किन इज द गेटवे ऑफ योर पर्सनालिटी। इफ वी राइट। वांट टू लुक ग्लैमरस, वी लुक टू लुक गॉर्जियस एंड एज ए एंटी एजिंग, अगर जो सनस्क्रीन हम रेगुलर लगाएंगे तो स्किन हमारी हेल्दी रहेगी,
और सोशल मीडिया में अगर हमें पिक्चर सेंड करना है, रील बनाना है, तो सभी लोग को क्या है कि वो फोटोग्राफ्स तो अच्छा ही चाहिए। तो वो सोशल मीडिया में भी, मार्केटिंग में भी सबसे बढ़िया वो एक तरीका यंगस्टर में है। दूसरा, जिसको ऑलरेडी स्किन डिजीज है और किसी किसी को आपने बोला कि स्किन कैंसर का भी अभी क्या क्या ज्यादा रिस्क बढ़ जाता जी है, और किसी जी किसी को रोजेसिया है, एक्ने फॉर्म इरप्शन है, धूप की एलर्जी है, और अभी वेकेशन की सीजन है तो सभी लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए बीच पे जा रहे हैं। तो वहां पे अगर हमें सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास काफी लोग ऐसा आते हैं कि स्विमिंग करने के बाद या वाटर पार्क में जाने के बाद पूरा एरिया में टैनिंग हो जाते हैं। तो वो टैनिंग प्रिवेंशन के लिए भी सनस्क्रीन रेगुलर लगाना चाहिए। ये जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको अगर पता जी है कि सनस्क्रीन लगाएंगे तो टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा अभी सोशल अवेयरनेस भी बढ़ गया है सोशल मीडिया की वजह से, तो एज ए प्रिवेंटिव जी पर्पस भी हम यूज कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर, आई बिलीव एक और चीज है जिससे शायद सोसाइटी के कुछ लोग जो सोचते हैं कि ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कि सनस्क्रीन का जो इफेक्ट है आपको इमीडिएट नहीं नजर आएगा। थोड़ा सा लंबा समय जब आप उसे यूज करेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ऑल्सो हमने किसी किसी जगह देखा भी है कि बोलते हैं कि आप फेस के एक साइड में सनस्क्रीन लगाइए और एक यस। साइड में सनस्क्रीन नहीं लगाइए, आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? क्या थोड़ा लंबा टाइम यूज करने के बाद सनस्क्रीन का इफेक्ट दिखता है? सही बात। एक्चुअली वो हमारी टाइप ऑफ स्किन कैसी है, हमारे जो अगर फिक्स फैक्ट्री के जी अकॉर्डिंगली हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन वाला की स्किन देखेगा तो एक व्हाइट स्किन होती है। तो उसमें अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको तुरंत फेस पे रेडनेस आ जाएगी और इचिंग जी आ जाएगा। और हाँ, और हमारी स्किन है जी टाइप 4 है, इंडियन स्किन है, तो उसमें हमें तुरंत हम्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम्म हमारी एज 50 चली गई, उसके टाइम पे हमें देखेंगे तो स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग आ जाएगी, किसी किसी को फ्रेकल आ हम्म जाएगा, किसी किसी को मेलाज्मा हो जाएगा, हम्म किसी किसी को टैनिंग हो जाएगा। अगर वो हमें प्रिवेंट करना है तो अगर रेगुलरली हम यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद मिलेंगे। अगर एक बार ऑलरेडी कोई हम्म डिजीज आपको हो गया, मेलाज्मा हो गया, लेंटिजन हो गया, पीआईएच हो गया, उसके बाद में हम लगाएंगे तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो बेनिफिट हम्म। प्रिवेंटिव पर्पस के लिए है तो तुरंत नहीं मिलने वाले। जी जी आई बिलीव आप सभी को अभी समझ में आ रहा है कि ये चीज कितना नाजुक है और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अप्लाई सनस्क्रीन ऑन अ रेगुलर बेसिस। डॉक्टर, समय के साथ जैसे कि अभी बहुत सारे कंपनीज बना रहे हैं सनस्क्रीन, बहुत तरीके की सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में। तो किस प्रकार का सनस्क्रीन इजी टू गो, सबसे ज्यादा सेफ, इजी टू गो हो सकता है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए? अब सही क्वेश्चन, जो अभी मार्केट में देखेंगे तो सनस्क्रीन में लोशन फॉर्म में आ रहा है, जेल फॉर्म में आ रहा हुँ, है, क्रीम फॉर्म में आ रहा हुँ। है। अभी टिंटेड सनस्क्रीन का भी बहुत डिमांड है जी, मार्केट में। जी, दूसरा एक जी, मिस्ट स्प्रे फॉर्म में आ रहा है, किसी किसी को जी। अगर कैरी करना तो स्टिक फॉर्म में आ रहा है। वो एक्चुअली अगर हुँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को हम दिखाएंगे कि हमारी स्किन कैसी है, हुँ, मुझे फेस पे हुँ। एक्ने हो रहा है, मेरी स्किन ऑयली है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को राइट, जेल बेस्ड सनस्क्रीन प्रेफर करेंगे। और अगर मेरी जी। स्किन हेयरी ज्यादा है और लार्ज एरिया में लगाना हुँ, है तो लोशन, या फिर ऐसा है तो स्प्रे फॉर्म में, मिस्ट स्प्रे फॉर्म में आता है, तो लगाने का थोड़ा तरीका भी इजी रहेगा और प्रॉपर उसको पेनिट्रेशन भी होगा। तीसरी चीज, जी। अगर मेरी स्किन सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है तो मैं हुँ, वाटर एंड ऑयल बेस वाला फॉर्मूला वाला, मीन्स के क्रीम बेस वाला सनस्क्रीन में यूज करूंगा। चौथी चीज, अगर रेगुलर हमें ट्रैवलिंग करना है तो हम पर्स में रह सके, इसीलिए स्टिक वाला सनस्क्रीन आता है कि वो ऑयली स्किन में भी चलेगा और ड्राई स्किन में भी चलेगा। दूसरी चीज, जो स्टिक जी, हमने लगा दिया रास्ते में ट्रैवलिंग के टाइम पे और उसको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें कौन सी स्किन है, कौन सा इंडिकेशन है, उसके हिसाब से हमें सनस्क्रीन का टाइप ऑफ सनस्क्रीन में सिलेक्ट करना चाहिए। किसी किसी को लिप्स राइट। में थोड़ा ड्राइनेस है और एलर्जी है, तो लिप मॉइस्चराइजर के साथ में भी सनस्क्रीन आ रहा है। और हमें जी, कॉस्मेटिक के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर जो हमें लेजर थेरेपी ट्रीटमेंट करना है, केमिकल पिलिंग करना है, तो केमिकल पिलिंग या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बाद हमें मॉइस्चराइजर का भी रोल चाहिए और सनस्क्रीन का भी रोल चाहिए। तो उस टाइम पे हम दोनों कॉम्बिनेशन वाला सनस्क्रीन यूज करते हैं, अगर मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन हो ऐसा वाला। जी। जी जी डॉक्टर, बहुत खूबसूरती से डॉक्टर ने हमें समझाया है कि
किस स्किन के टाइप के हिसाब से हमें मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। डॉक्टर ऑल्सो जो स्किन केयर रेजीम आजकल फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्किन केयर एंथुजियास्ट आजकल आ गए हैं, मेड बी विमेन मेड बी मेन, सभी रिलीजियसली आजकल स्किन केयर फॉलो करते हैं, क्योंकि समझ में यस आ रहा है लोगों को कि समय के साथ कितना जरूरी है अच्छा स्किन केयर मेंटेन करना। तो यस। सनस्क्रीन का जगह उसमें किस किस पोजीशन में आएगा? सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, और किस स्टेप में सनस्क्रीन आएगा एग्जैक्टली? नाइस क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ तो उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ। जी CTMS, सी फॉर द क्लिनजिंग लोशन। कि हमें शायद कोई डस्ट में गए और आउटसाइड गए तो प्रॉपर फेस का क्लीन होना चाहिए, क्लिनजिंग। नाउअडेज वी आर यूजिंग द डबल क्लिनजिंग लोशन। अगर हमने कोई मेकअप के ऐसा कुछ यूज किया तो रेगुलरली हम स्टेराइल अल्कोहल और सिटाइल अल्कोहल, या डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्किन, पहले फेस को क्लीन करना है तो पहला स्टेप हो गया। अगर ज्यादा ऑयली स्किन है और मेकअप लगाया तो हम फेस वॉश से भी क्लीन कर सकते हैं। उसमें जी टी ट्री ऑयल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड के हिसाब से डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ स्किन। सी फॉर क्लिनजिंग लोशन, टी फॉर द टोनर। और टोनर भी रेगुलरली हम आप देखेंगे तो रोज वाटर आता है जो गुलाब जल बोलते हैं, वो वन टाइप ऑफ टोनर ही है। अगर हमारी जी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो उसमें हम टोनर को स्किप कर देते हैं। किसी किसी को इसका इरिटेशन होता है क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट आता है और स्किन को इरिटेशन हम्म होता है। अगर ऑयली स्किन है तो टोनर हम यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज आएंगी मॉइस्चराइजर। तो अगर हमारी स्किन ऑयली है फिर भी स्किन को मॉइस्चराइजर तो लगाना ही चाहिए। काफी लोग को ऐसा होता है कि हमारा समर है, परस्पिरेशन ज्यादा है तो मॉइस्चराइजर नहीं यूज करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बताएंगे आपको प्रोपिलीन ग्लाइकोल वाला मॉइस्चराइजिंग चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर चाहिए। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्किन मॉइस्चराइजर भी कंपलसरी है। CTMS। चौथी चीज में आएगा सनस्क्रीन आएगा। क्लिंजर जी किया, टोनर किया, मॉइस्चराइजर किया, उसके बाद में हमें रेगुलर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो पूरी स्किन हमारी हेल्दी रहेगी और उसका बेनिफिट प्रॉपर मिलेगा। जी जी। डॉक्टर, एक और बदलाव के बारे में बात हम करेंगे आज, जो आई बिलीव आज तक लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। हम जो पहले स्किन इश्यूज के लिए डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे, और वो हमें कुछ फॉर्मूला के, जैसे आपने हाइलुरोनिक एसिड कहा अभी, तो उस यस फॉर्मूला के जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या जिस स्किन टाइप के लिए जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करते थे। आजकल बहुत सारी ब्रांड्स भी अ, ऐसे कॉम्बिनेशंस या फॉर्मूलाज के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और बहुत ही रेजिंगली हमारी आज के ऑडियंस जो है, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग यूज भी कर रहे हैं, बहुत ह्यूज सेल भी है। तो क्या बदलाव आया है उस समय से आज के एज में? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या पेशेंट्स ज्यादा सफर कर रहे हैं इस वजह से, या ज्यादा कॉन्शियस हो गई है आज के समय? सही बात। हमारे ओपीडी में भी काफी लोग ऐसा आते हैं कि सामने से अब पूछते हैं कि सर मैं रेगुलर कौन जी से वाला विटामिन सी लगाना चाहिए, कौन से वाला विटामिन ए लगाना चाहिए, कौन से वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो पहले भी जी मैंने बताया कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो उसकी वजह से, और यंग जनरेशन थोड़ा काफी उसके लिए टुकमा सोच है कि अपना फेस के लिए और लुक के लिए टुकमा थोड़ा वो ज्यादा कॉन्शियस है। तो वो एक बदलाव आया है। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हमने प्रॉपर डाइट लिया, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सलाड है, हमारा प्रॉपर स्लीप प्रॉपर है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हम योगा है, प्राणायाम है, साइकिलिंग है, अगर हमारा डाइट प्रॉपर है, लाइफस्टाइल प्रॉपर है, हम प्रॉपर वाटर इंटेक करेंगे और प्रॉपर हमारी स्लीप है, उसका मैं शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं तो PM न्यूज पॉजिटिव एटीट्यूड, मेडिटेशन एंड फॉर न्यूट्रिशन। अगर हम जंक फूड कम खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेंगे, वाटर इंटेक वाला फूड ज्यादा लेंगे। तीसरी चीज एक्सरसाइज, डबल फॉर वाटर। अगर डेली का हम मिनिमम 2 to 3 लीटर वाटर इंटेक करेंगे और हमारा 7 to 8 आवर की प्रॉपर स्लीप होगी, अगर ये प्रॉपर फॉर्मूला अच्छा हुआ तो मेरी तरफ से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। केवल सनस्क्रीन और जी मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो भी हमारी स्किन अच्छी रहेगी। क्योंकि हेल्दी जी एंड ब्यूटीफुल स्किन सबको चाहिए, लेकिन वो लाइफस्टाइल किसी को जी फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जी रात को आप जी लेट जी सोते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अभी वो सनस्क्रीन का कोई रोल नहीं है, क्या मॉइस्चराइजर का कोई रोल नहीं है। जी। एक और बात, आई बिलीव जितने भी व्यूअर्स हैं अभी हमें देख रहे हैं, रिलेट तो कर पाएंगे इस बात से, आप लोग एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही मिथ है कि गुड स्किन मतलब फेयर स्किन,
स्किन गोरा ओके। होना पड़ेगा, है ना? हम्म। हम ये नहीं देखते हैं कि टैन स्किन में भी हेल्दी स्किन अच्छे लगते हैं। राइट। मे बी अभी थोड़ा सा जब हम बाहर के कल्चर अपना रहे हैं इंडियन लोग ज्यादा, वी हैव अंडरस्टूड कि टैन स्किन डार्क स्किन भी ब्यूटीफुल स्किन ही है। यस। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बाहर के प्रोडक्ट्स जो ये लोग अप्लाई करके आज के डेट में स्किन फेयर कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, क्या ये सेफ है डॉक्टर, या क्या जरूरत है इस चीज की? वो तो एक्चुअली वो हमारा पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री हम देखेंगे तो हम्म। इंडियंस के लिए तो हमारी स्किन है वो घुंघरानी स्किन बोलते हैं। तो हमारा जी। पेरेंट्स की स्किन ऐसी है तो हमारी स्किन ऐसी आएगी। लेकिन जी। पेरेंट्स की स्किन अगर व्हाइट है, हम जब छोटे थे बच्चे थे उस टाइम हमारी स्किन व्हाइट है, अगर हम रेगुलर केयर नहीं किया या फिर कोई ड्रग की वजह से पिगमेंटेशन हुआ या कोई सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन हुआ तो हमारी स्किन डार्क हुई। तो उसमें हम अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, आपने बोला था हमारे पास काफी लोग ग्लूटाथियोन यूज कर रहे हैं, टॉपिकल ग्लूटाथियोन आते हैं, उसका इंजेक्शन भी लगाते हैं और विटामिन सी भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम्म। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में डार्क स्किन है, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, इंजेक्शन ग्लूटाथियोन की ड्रिप लगाएंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन उससे भी पहला राइट। मैंने बोला वो हमारी जो लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज वो अगर मेंटेन करेंगे तो हमारी स्किन इनर से ही हेल्दी रहेगी। वो सबसे बड़ा राइट। इंपॉर्टेंट है। राइट। राइट। एंड बेसिक चीज है, आप अंदर से क्या, कैसे, कैसा है आपका बॉडी, सबसे पहला रिफ्लेक्शन आपके स्किन में और हेयर में ही दिखता है। तो आपका स्किन इज, इट्स अ मिरर ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन, राइट। है। राइट, एक मिरर की तरह रिफ्लेक्शन आपका स्किन है। तो बहुत इजीली ये सारे प्रॉब्लम जो स्किन के प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकती है, अगर आप अपनी इलाज खुद ना करें, अगर आप अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास जाए। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयेश के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन के बारे में। डॉक्टर, हम अगले सवाल की ओर जाएंगे। एक और सवाल जो सभी सोचते होंगे कि सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है, बाहर जाना है तो एक कपड़े से अपने आप को ढक लेंगे, चाहे हाथ कवर कर लेंगे, ग्लव्स आ गए हैं। तो क्या जरूरत है सनस्क्रीन का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सही क्वेश्चन। क्योंकि पहले हम ऐसे ही करते थे, अगर बाहर धूप में जाने वाले हैं तो हम अगर कैप हम्म। यूज करेंगे, स्कार्फ यूज किया, फुल स्लीव के हमने कपड़े पहने या फिर ऐसा तो ग्लोव्स पहना, हम्म। वो ए हम्म। वन टाइप ऑफ एड ऑन थेरापी। उससे जी। हमें बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन ये सनस्क्रीन का ऑल्टरनेटिव नहीं है मैडम। अगर हम हम्म। प्रॉपर वो फिजिकल मोडालिटी है, लेकिन इतनी धूप में हम अगर स्कार्फ पहने हैं लेकिन वो पूरा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम एज ए एड जी। ऑन की तरह हम वो हेट है, अम्ब्रेला है यूज करेंगे। अगर हमने अम्ब्रेला यूज किया तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी को वो प्रोटेक्शन तो करेगा लेकिन जो ग्राउंड से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट नहीं करेगा। तो एड ऑन के लिए राइट। हम वो यूज कर सकते हैं लेकिन उसको सनस्क्रीन का ऑल्टरनेटिव हम यूज नहीं कर सकते हैं। जी। तो बेसिकली सनस्क्रीन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है नहीं। दोस्तों। इसे आप किसी भी चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और एप्लीकेशन तो जरूरत है, बहुत ज्यादा हाँ। जरूरत है। डॉक्टर, एक और सवाल आपके लिए। जो लेडीज मेकअप करना चाह रही हैं, आजकल तो लेडीज जेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी मेकअप अप्लाई करते हैं, प्राउडली अप्लाई करते हैं, देयर इज नो इश्यू विद दैट। तो क्या सनस्क्रीन एप्लीकेशन नॉर्मल है मेकअप के साथ? अगर लगाना है तो किस प्रकार हमें अप्लाई करना है? अ, अभी मेकअप के साथ में काफी प्रोडक्ट कैसी आती है उसके साथ में भी सनस्क्रीन आ रहा है, ऐसा है फाउंडेशन के साथ में, जी। लेकिन उसमें जी। इतना बेनिफिट जी। नहीं मिलता है। लेकिन जी। अगर हमें मेकअप यूज करना है तो हम्म। उसमें भी ऐसा है कि डबल तरीका है। अगर हमें मेकअप यूज किया उससे पहले भी हम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्लिंजर, हम्म। टोनर, मॉइस्चराइजर, उसके बाद में सनस्क्रीन। लेकिन एक बात मैं जरूर राइट। बोलूंगा, वो अगर मेकअप में अगर सनस्क्रीन यूज करना है तो हमें जेल बेस वाला सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए। और उसके जी। बाद में हम प्राइमर लगाएंगे और फाउंडेशन लगाएंगे तो चलेगा। और अगर हम्म। प्राइमर फाउंडेशन पूरा कवर किया उसके बाद में अगर हमें डबल प्रोटेक्शन चाहिए तो इसमें मिस्ट स्प्रे वाला भी सनस्क्रीन आता है। वो मेकअप करने के राइट। बाद भी हम स्प्रे वाला यूज कर सकते हैं। पहले तो लगाना है प्राइमर से पहले, लेकिन पूरा मेकअप हम्म। के बाद लगना है तो स्प्रे वाला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेकअप के प्रोडक्ट के साथ में जो सनस्क्रीन कभी बताते हैं वो इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो अलग से हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना है। राइट। राइट। डॉक्टर, मैं देख पा रही हूँ हमारे कुछ व्यूअर्स भी सवाल पूछ रहे हैं। आज काफी सारे व्यूअर्स चिंतित है सेम इश्यू लेके। सबसे पहला सवाल आ रहा है अभय से। अभय पूछते हैं, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी यूज सनस्क्रीन इन अ डे?
मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर रेगुलरली हमें इंडोर एक्टिविटी और टूंक में घर पे ही रहना है, कॉर्पोरेट वर्कर है ऑफिस में, तो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रेगुलरली, रिलीजियसली एंड रीएप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट, 3 R यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें बारिश की सीजन है, क्लाउडी एटमोस्फियर है, तो 3 टाइम्स लगाने का है। दूसरी चीज, अगर हमें घूमने के लिए जाना है, अभी वेकेशन की सीजन है, हम बीच पे जाएंगे, वाटर में जाएंगे, स्नो में जाए, तो उस टाइम पे सन का रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा, तो वो बहुत डेंजर है। तीसरी चीज, अगर हमें क्लाउडी एटमोस्फियर है तो उसमें भी रेडिएशन ज्यादा है, तो उस टाइम पे भी स्पेशल सनस्क्रीन चाहिए। चौथी चीज और इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है, कभी हम ऐसा लगता है कि कोई माउंटेन पे गए और हाई एल्टीट्यूड पे गए, तो ऐसा लगता है वहां पे तो धूप नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सन इज मोर क्लोजर टू आवर स्किन, तो उस टाइम पे भी हमें 50 SPF वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। मिनिमम 2 to 3 टाइम्स लगाए तो बेटर है। और अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना है और अभी हमें स्विमिंग करने के लिए जाना है, तो उस टाइम पे हमें वाटरप्रूफ या फिर वेरी वाटर रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि वो स्वेट रेजिस्टेंट भी करेगा थोड़ा। अगर एक्सरसाइज के लिए जाना है और स्विमिंग के लिए जाना है तो वाटर को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो रेगुलरली 3 to 4 टाइम्स उस टाइम पे लगा सकते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर, एक और समस्या है जिनको एक्ने है। एक्ने पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक सनस्क्रीन है? और क्या जो डर है उनके अंदर की एक्ने है तो कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमेशा स्किन को बेयर ही रखना है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? एक्ने है तो, लेकिन उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखा के वो प्रिस्क्राइब कर ऐसे वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो एक्ने के पास अगर हम स्क्रैच करते हैं या कोई भी केमिकल पीलिंग जैसी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका पिगमेंटेशन प्रिवेंशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो उसके लिए फिजिकल ब्लॉकर सनस्क्रीन, जिसके अंदर वो आयरन ऑक्साइड कंटेंट है, जिंक ऑक्साइड है और टिटेनियम डाइऑक्साइड है, या फिर सिंपल जो कैलामाइन लोशन है, दिस इज वन टाइप ऑफ सनस्क्रीन, वो अगर लगाएंगे तो दिस इज ए नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन। अगर हम ऑयल बेस वाला सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो आपको थोड़ा पिंपल्स या कॉमेडन कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम केमिस्ट के पास और मार्केट में से प्रिस्क्राइब परचेस करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के वो प्रिस्क्राइब करे ऐसा वाला सनस्क्रीन लगाएंगे तो बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा और पिंपल्स बढ़ेगा भी नहीं। राइट, राइट। वेल, दैट वाज अ साइन ऑफ रिलीफ फ्रॉम माय डॉक्टर टुडे। डॉक्टर, अगला सवाल आ रहा है मयंक की तरफ से, जो पूछते हैं, कैन वी यूज सनस्क्रीन ऑन लिप्स, एंड इफ सो व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर रिकमेंडेड? अगर हमें किसी किसी को लिप्स में चिलाइटिस होते हैं और लिप्स सेंसिटिव है, तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन, उसका कंटेंट में अगर ऑक्सीबेंजोन या ओबेंजोन इज वेरी मोर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट ए। सेकंड चीज अल्ट्रावायलेट बी प्रोटेक्शन, उसके लिए पेडीमेट पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड वाला कंटेंट वाला। और तीसरी चीज फिजिकल ब्लॉकर, कि मैंने बोला कि आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो वो सनस्क्रीन को ऐसा बोलते हैं कि हाइब्रिड सनस्क्रीन, फिजिकल एंड अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों का प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और अभी नया लिपस्टिक आती है, उसमें साथ में मॉइस्चराइजर भी कंटेंट वाला है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, लिक्विड पैराफिन है और सोप पैराफिन। तो मेरा कहना क्या है, किसी किसी को विंटर में अगर ड्राइनेस है और एलर्जी है तो मॉइस्चराइजर के साथ में हाइब्रिड सनस्क्रीन वाला यूज करना चाहिए। वेरी वेरी वेल। डॉक्टर, अगला सवाल पूछते हैं पूजा। पूजा पूछ रही है, कैन सनस्क्रीन हेल्प प्रिवेंट स्किन एजिंग एंड रिंकल्स? यस, डेफिनेटली। एक्चुअली हमारा जो स्किन का जो एजिंग है, तो मैंने बोला कि ऑलरेडी जो ब्लू लाइट है कि 400 to 700 नैनोमीटर है, तो ब्लू लाइट अगर हमें रेगुलर एक्सपोजर में है, सोशल मीडिया में मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो दिस इज वन टाइप ऑफ सोर्स फॉर द एजिंग। दूसरी चीज अल्ट्रावायलेट ए है, वो अगर रेगुलर हमारा कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग दिखेंगी। अगर मेरी स्किन 40, 45, 43 है, लेकिन मुझे 30 ईयर्स 32 ईयर्स से एजिंग लगने लगेगी, तो एज ए प्रिवेंटिव पर्पस, एज ए एंटी एजिंग पर्पस, हमें 40 ईयर्स से पहले ही सनस्क्रीन लगाने का स्टार्ट कर दिया तो हमारी एजिंग को हम, एजिंग इज अनएविटेबल, बट अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो हम उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं और फिर उसको डिले कर सकते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर, अगला सवाल पूछती है आयुषी। आयुषी पूछ रही है, सनस्क्रीन में कौन सा इंग्रेडिएंट होना चाहिए? वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने बोला कि आपको कौन से इंडिकेशन के लिए चाहिए सनस्क्रीन, लेकिन सिंपली मैं बताऊंगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन, उसमें अल्ट्रावायलेट ए को प्रोटेक्शन करे उसके लिए ऑक्सीबेंजोन है, एओबेंजोन है, और उसके साथ में ऑक्टोक्राइलिन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्शन वाला कंटेंट। और
फिजिकल ब्लॉकर हम अगर यूज करने चाहते हैं तो मैंने बोला वो आयरन ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड दोनों में से कोई भी एक कंटेंट चाहिए। और इसमें भी अगर नैनो पार्टिकल वाली साइज है या मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन है तो लगाने के बाद आपको ऑयली बीनेस भी नहीं लगेगी। तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड फिजिकल ब्लॉकर और तीनों का कॉम्बिनेशन वाला सनस्क्रीन है तो सबसे बढ़िया वाला है। अगर किसी किसी को एलर्जी है और अगर हमें प्रेग्नेंट लेडी को यूज करना है और लैक्टेटिंग वुमन को यूज करना है तो उसके लिए जो पैराअमीनो बेंजोइक एसिड है, एक्सीबेंजोन है, एओबेंजोन है, वो प्रेगनेंसी में यूज करेंगे तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड में सिक्रेशन उसका होता है। और लैक्टेटिंग वुमन अगर यूज करेंगे फुल बॉडी में तो ब्रेस्ट मिल्क के भी सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रेशन होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग वुमन को यूज करना है तो उसको केवल फिजिकल ब्लॉकर यूज करना चाहिए। चौथी चीज, अगर चिल्ड्रन को यूज करना है, बच्चे लोग को, तो हम 6 मंथ के अबाउट कर सकते हैं। उसको भी हमें केमिकल वाला इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन नहीं यूज करना है, उसको हमें फिजिकल ब्लॉकर ही सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो लेस देन 6 मंथ बच्चे के लिए यूज करना है तो उसको फिजिकल कैलामाइन है वो वाला सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। राइट राइट। डॉक्टर, सवाल अगला आ रहा है अभिषेक की तरफ से जो पूछते हैं, शुड आई बी यूजिंग अ डिफरेंट सनस्क्रीन फॉर माय फेस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स? यस, अगर विंटर में थोड़ा स्किन हमारा ड्राई है तो मैंने बोला कि वो सनस्क्रीन में साथ मॉइस्चराइजिंग कंटेंट आता है कि लिक्विड पैराफिन है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, तो ऐसे वाला सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अगर अभी समर है, टेम्परेचर मोर देन 42 डिग्री है, परस्पिरेशन ज्यादा है, तो स्वेटिंग ज्यादा रहती है, उसके लिए स्वेट प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और अगर हमारी स्किन मिक्स स्किन है और या सेंसिटिव स्किन है तो हमें विदाउट केमिकल वाला सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो विंटर में थोड़ा मॉइस्चराइजिंग वाला यूज करेंगे तो मॉइस्चराइजिंग के पर्पस भी सोल्व हो जाएंगे, और समर में थोड़ा स्वेटिंग ज्यादा है तो स्वेट रेजिस्टेंस वाला सनस्क्रीन यूज करेंगे तो समर के लिए वो बेटर है। राइट। डॉक्टर, इंडियन सोसाइटी से हम सभी बिलोंग करते हैं, तो कुछ भी इधर उधर इशू हो तो हमें हमारे पास घरेलू नुस्खे हमेशा तैयार रहते हैं। राइट तो राइट। इनके ऑल्टरनेटिव कोई घरेलू नुस्खे हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज हमें बताइए। अगर हमारी स्किन में, मैंने बोला एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे लगाएंगे तो बेटर है, लेकिन घरेलू नुस्खे के लिए कोई भी हम मॉइस्चराइजिंग घर पे कोई भी वेसेलिन है, निविया का क्रीम है, और काफी लोग गाँव वाले लोग घी लगाते हैं या फिर कभी बटर लगाते हैं, तो वन टाइप ऑफ बैरियर क्रीम अगर हम फेस पे लगा दिया तो वो सन को पेनिट्रेट नहीं करना देंगे। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा, अगर फेस पे मुझे पिंपल्स हो रहे हैं और कोई बॉयल्स के ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे हमें वो ऑयली क्रीम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कोई भी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी घर पे पड़ा हुआ मॉइस्चराइजर अगर लगाएंगे, कुछ नहीं लगाए उससे तो बेटर है, तो लगाएंगे तो स्किन को प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। तो कोई भी घी या फिर मॉइस्चराइजिंग लिक्विड पैराफिन वाला कोई भी है और पॉन्ड्स का है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग घर पे पड़ा है तो वो लगा सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राइट। वेल, डॉक्टर ने बड़ा ही अच्छा चीज बताया। घी घी हमारे आयुर्वेदा के समय से यूज होते आ रहा है, और कहते हैं कि घी को अगर आप 100 बार धोते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर बनता है आपके स्किन के लिए। डॉक्टर, आजकल तो ऑर्गेनिक चीजों का जमाना है, पुरानी चीजें फिर से लौट के आ रहे हैं वापस। वही पुरानी चीजें जो घर पे बन जाती है, कंपनीज आज के डेट में बहुत बहुत सारे केमिकल्स ऐड करके उसी चीज को लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बना के बहुत पैसों में बेच रही है। तो जो ऑडियंस वो सब देख के बड़ा ही आश्चर्यजनित हो जा रहे हैं आज के डेट में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ना सही बात है, क्योंकि अभी क्या पूरा मार्केट में बोल रहा है जो केमिकल की वजह से ऑर्गेनिक वाला सभी लोग का डिमांड ज्यादा है, क्योंकि सभी लोग को अभी क्या केमिकल की वजह से उसको कैंसर है कि स्किन का डिजीज दूसरा होने का और जीआईटी प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा रहते हैं। तो घी हम आयुर्वेदिक में बोला है कि वो तो सबसे बड़ा बेस्ट है, ऐसा है। तो अगर जो हम लिप्स में भी मॉइस्चराइजर की जगह पर यूज करेंगे, फेस में भी यूज करेंगे विंटर में, तो सबसे बढ़िया वाला है। लेकिन अभी के जो यंगस्टर है और बच्चे लोग को आप लगाएंगे ना तो उसका स्मेल अच्छी नहीं लगती है और ज्यादा उसको ऑयलीनेस है। तो वन टाइप ऑफ ओक्लूसिव हाइड्रेटिंग, हमारा वो मॉइस्चराइजर में 3-4 टाइप आता है, इमोलिएंट आते हैं, ओक्लूसिव आते हैं, तो दिस इज ए बेस्ट मॉइस्चराइजर। बट मैंने बोला उसी तरह से जिसको कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स के ऐसा कुछ है, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर हम खाने में भी अगर घी रेगुलर यूज करेंगे तो वह भी एक्चुअली हेल्दी है स्किन के लिए। राइट राइट। डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है हमारे व्यूअर की तरफ से जो पूछते हैं, कैन वी यूज सीरम इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर? Yes, we can use serum instead of moisturizer,
लेकिन सीरम की जो विस्कोसिटी है वो मॉइस्चराइजर से थोड़ी कम है। लेकिन हम कौन से इंडिकेशन के लिए हम सीरम यूज कर रहे हैं, अगर हमें पूरा एरिया कवर करना है तो मॉइस्चराइजर की जगह से सीरम फोम में लगाने का तरीका इजी रहेगा, ऐसा है। दूसरी चीज, राइट। आपने बोला कि अगर हमारा हेयर में भी अभी काफी लोग सीरम यूज कर रहे हैं, तो जिसको स्काल्प अगर ऑयली है, किसी किसी को डेंड्रफ की तकलीफ है, तो अगर स्काल्प में भी हम सीरम यूज करना चाहते हैं तो क्या है कि वो हमारा सीबीएसएस ग्लैंड में सिक्रीशन को थोड़ा कम करते हैं, और जिसको डेंड्रफ की कंप्लेन है तो वो भी कम रहेगा। तो स्काल्प में भी सीरम यूज कर सकते हैं, फेस में भी सीरम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसको स्किन ज्यादा ऑयली है तो उसका ऑल्टरनेटिव के लिए मॉइस्चराइजर से बेटर ये है कि सीरम यूज करें तो बेटर है। राइट, राइट। वेल, बहुत ही खूबसूरती से आज डॉक्टर ने हमें हर एक बात समझाया है। डॉक्टर, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज आपके साथ हमारा। इससे पहले कि हम आज अलविदा कहें हमारे व्यूअर्स को, कुछ घरेलू टेक होम नोट्स या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे जो आज के व्यूअर्स घर ले जाएंगे और हमेशा याद रखेंगे? मैं ऐसा बताऊंगा कि पहले हमने किया कि अगर हमें हेल्दी रहना चाहिए, स्किन भी हमारी ग्लोरियस चाहिए, ग्लैमरस चाहिए और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो हमें रेगुलरली सनस्क्रीन लगाना चाहिए, रिपीटेडली लगाना चाहिए और रिलीजियसली लगाना चाहिए। देयर इज नो एनी सीजन और देयर इज एनी नो रीजन टू स्किप द सनस्क्रीन। चौथी चीज क्या, बच्चे को अगर हम सनस्क्रीन किसी किसी को लगाने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके हम अगर कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी एक दूसरा फैक्टर आता है, यूपीएफ फैक्टर, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिंग फैक्टर। वो अगर हम देख के खरीदेंगे तो उसका मिनिमम यूपीएफ 50 वाला सनस्क्रीन कपड़े खरीदेंगे तो वो वन टाइप ऑफ सनस्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों को 97% प्रोटेक्शन कर मिलेगा। तो बच्चे को अगर हम अच्छी वाली ब्रांड परचेस करने के लिए जाएंगे तो उसमें हमें जरूर देखना है कि उसका यूपीएफ कितना है। तो वो 50 यूपीएफ वाला परचेस करेंगे तो वो वन टाइप ऑफ सनस्क्रीन का भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरी चीज, जिस जिस चीज को स्किन में कोई ऑलरेडी फोटो डर्मेटोसिस है, फोटो सेंसिटिव स्किन है, किसी किसी को विटिलिगो है, तो उसके लिए टॉपिकल सनस्क्रीन तो चाहिए, लेकिन किसी किसी को सनस्क्रीन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पूरा बॉडी में लगाने के लिए, तो उसके लिए ओरल सनस्क्रीन भी आता है। तो विटामिन सी है, विटामिन ई है, अल्फा टोकोफेरॉल है, जिंक है, तो वन टाइप ऑफ ओरल सनस्क्रीन भी यूज करेंगे तो वो एज एड ऑन की तरह उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा जरूर कहने का है, हम अगर रेगुलरली सनस्क्रीन लगाएंगे तो एजिंग को थोड़ा प्रिवेंट भी कर लेंगे और स्किन को थोड़ा हेल्दी और ग्लोइंग भी रखेंगे। और आपने बोला कि स्किन इज द मिरर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो अगर हमारी स्किन भी अच्छी है तो सामने वाला लोग को हम पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी तो उसको इंप्रेस भी कर पाएंगे। तो सनस्क्रीन इज ए मस्ट। राइट, राइट। एंड एज वी ऑलवेज से कि सनस्क्रीन का कोई तोड़ नहीं है, ना ही इसे जी किसी चीज से हम रिप्लेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो जरूरी है और हमेशा हमेशा जरूरी है। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। दैट वाज डॉक्टर जयेश फॉर अस। एंड बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज हमारे व्यूअर्स के लिए। आई बिलीव बहुत बहुत यूजफुल होगा ये सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। और ऐसे ही बेहतरीन सेशन हम चाहेंगे कि बार बार आप आए हमारे बीच में और हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे ही खूबसूरत solutions और जवाब लेके आए। Thank you so much once again, doctor. And for all our viewers, thank you so much for your active participation. For more updates, stay connected on our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Stay safe and stay healthy. Thank you, madam. So, thank you.